Steve Jobs का? हाँ, what is the meaning of connecting the dots? To connect your previous with your future steps. तुम अपने previous steps, तुम्हारे previous life steps को अपने फ्यूचर स्टेप से एसोसिएट करते हो कि तुम फ्यूचर में कुछ सक्सेसफुल बन पाओ. एंड फर्स्ट स्टोरी में क्या बोला था स्टीव जॉब्स ने कि वो कैसे उनका कैसे कॉलेज लाइफ था, हाउ वाज हिज पर्सनल लाइफ, हाउ डिड ही after 10 years how did he make his first computer, and finally his beliefs, his approaches. Now we will start with the second story, but before that let's come to your page number 62. There are 3 questions in the green box. First one is, what did Steve Jobs do for 2 years after he joined Reed College? The second one is, what hardship did Jobs face? And the last one is, what basic course in Reed College helped Jobs while designing the Mac? Now you have to solve all the 3 questions and submit me as your homework. And beside that, I will give you another homework also. But this is your confirmed homework, okay? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन, what did Steve Jobs do for 2 years after he joined Reed College? उसने 2 साल क्या किया? Now in the passage 2 years का कोई भी रिमार्क नहीं प्रेजेंट है. आपको उसको वो एक हिंट है, आपको उसको क्रैक करना है. यहाँ पे फर्स्ट पैसेज में तुम लोग आओगे. See to it. Read. Today I want to tell you 3 stories from my life. That's it. Just 3 stories. The first story is about connecting dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months. 6 month को ऐड करना है आपको 18 मंथ से. 18 प्लस 6 कितना होता है? 24. That means 2 years. ओके, तो उनकी कॉलेज लाइफ पूरी कब हुई? पूरा कॉलेज लाइफ किसमें रिवॉल्व हुआ है? जब उन्होंने ड्रॉप आउट किया था रीड कॉलेज से, एंड देन फाइनली आफ्टर 6 मंथ उन्होंने फिर से ड्रॉप इन किया था 18 मंथ तक, एंड देन ही फाइनली क्विट. ही डिसाइडेड टू क्विट. दैट्स योर आंसर. First he dropped out of Reed College, so your answer will be like Steve Jobs dropped out of Reed College after the first 6 months, but then he again dropped in for another 18 months, and finally he decided to quit. Okay? Okay? Now next. His room, he returned Coke bottles for the 5 cents deposit to buy food with, and he used to walk for 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. इतना आपका आंसर होगा. थर्ड आंसर आपको खुद ढूंढना होगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड स्टोरी. You can't connect up. Page number 63. My second is about love and loss. I found what I love to do early in life. Woz, Steve Wozniak, and I started Apple when I was 20 years. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company. And then I got fired. It was devastating. Now here, let's start with the second story. Second story about love and loss. First story is about connecting the dots, and second story is about love and loss. Now, यहाँ पे love क्या है? Love for his passion. वहाँ जब स्टीव जॉब्स को बहुत अर्ली रियलाइज हो गया था कि व्हाट ही लव्स इन हिज लाइफ, एंड ही लव्स कंप्यूटर्स. ओके, उनको उनको टेक्नोलॉजी से प्यार था, एंड ही started doing the thing in his life which he loved to do, okay, in a very early age. Steve Wozniak was his partner. वो उनके पार्टनर का नाम है. ओके, ये आपको पूछा जा सकता है. वो स्टीव वोजनियाक. नाउ, and I started Apple. Steve Jobs ने और वोज ने 20 at the age of 20 में एप्पल कंपनी स्टार्ट किया था एक गैरेज में, एंड आफ्टर 10 years के अंदर ही उन्होंने उस गैरेज से उस पूरे कंपनी को $2 billion की कंपनी बना दी. एंड फाइनली स्टीव वोजनियाक ने उनको फायर कर दिया. स्टीव जॉब्स मींस उनके ही फ्रेंड ने उनको बिट्रे करके उनको फायर कर दिया कंपनी से.
and that was devastating. यहाँ पे स्टीव जॉब्स कह रहे कि like it was devastating. Of course वो devastating होगा उनके लिए, because after doing such a hard work, उनको finally end में क्या मिला, वापस से स्टार्टअप, उनको फिर से अपना सब कुछ वैसे ही स्टार्ट करना था जहाँ से उन्होंने खत्म किया था। सारा का सारा जितना भी उनको जितना भी उन्होंने हार्डवर्क किया था उनको फिर से करना पड़ेगा, बिकॉज उनके फ्रेंड ने उनको बिट्रे कर दिया था। नाउ then too, he believes in hardship, he believes in karma, he believes in destination, he believes destiny. That's why he didn't lose his faith, and उन्होंने अपना फिर से सारा का सारा जितना भी उनका प्लान्स था, वो स्ट्रेटेजी भी उन्होंने फिर से एक नई कंपनी में स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? Let's see in the next paragraph. I hope you don't have any doubt up till here. But something slowly began to dawn on me. Now began to dawn on me. ये इसके ऊपर लिख दो फ्रेजल वर्ब्स। ये फ्रेजल वर्ब है, ऐसे वर्ब्स आपको मेक सेंटेंस में पूछे जा सकते हैं। began to dawn on me, now इसका मतलब began to become clear to, means dawn का मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है मॉर्निंग और स्टार्टिंग जो सुबह का टाइम होता है, एंड began to dawn on me का मीन्स होता है जब सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, लाइक व्हाट यू हैव टू डू। जब फाइनली स्टीव जॉब्स को फायर किया गया, देन उनको और भी ज्यादा क्लियर हो गया कि उनको इस फील्ड से कितना प्यार है। ही इज सो मच इन लव विद दिस फील्ड, और वो इस फील्ड को किसी भी कीमत पे, एंड ही हैज टू स्टार्ट अगेन विथ न्यू आइडियाज। ना वो न्यू आइडिया क्या था, कैसे था, and so I decided to start over. I still love what I did, and so I decided to start over. The heaviness of being successful was replaced with the lightness of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. Now here Steve Jobs is saying कि जब उनका जो second story जो love and loss के ऊपर है, finally when he got fired, he realized that he just loved to do what he was doing right now in his life, and he will start again. And he started with the concept that the happiness of being successful is being freed with a beginner concept. Now यहाँ पे उनका जो happiness था successful होने का, whenever a person is successful, he got some happiness. उनको stress मिलता है उस success को maintain करके रखने का, right? एक successful person होने के बाद वो free तो नहीं हो सकते। आप लोग को समझ में आ रहा है? प्लीज चैट में मुझे बताओ, अब तक यहाँ तक समझा? Yes, miss. हाँ, now let's start. So एक सक्सेसफुल पर्सन को हैप्पीनेस हैंडल करना पड़ता एक सक्सेसफुल पर्सन को हैप्पीनेस हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने इस पार्ट को एक पॉजिटिव पार्ट में लिया कि लाइक अब मैं फिर से बिगिनर बन चुका है। एक बिगिनर पर्सन को क्या सक्सेस हैंडल करने की जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उसको वो हर एक कॉन्सेप्ट फिर से एक न्यू डायरेक्शन में करना है, एक न्यू वे में करना है, जहाँ पे कोई मीडिया कुछ भी नहीं, उनके ऊपर लाइमलाइट कुछ भी नहीं होगा। ही कैन डू इट पीसफुली, एक पीसफुल के साथ विदाउट एनी स्ट्रेस वो कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, एंड ये जो टाइम था ये उनके लाइफ का सबसे क्रिएटिव पीरियड था। मीन्स उन्होंने बहुत सारे क्रिएटिविटी किया था इस पूरे पीरियड में। और वो उन्होंने नेक्स्ट 5 years में आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट, अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सर। नाउ 5 years के अंदर ही उन्होंने पिक्सर करके कंपनी को बनाया, and Pixar was Pixar is now considered as the world's most successful animation studio. Now, Apple bought next. I returned to Apple and technology we developed at Next is at the heart of the Apple. Please, ये जो आवाज आ रहा है, please mute yourself. Shouldn't जिसकी भी आवाज आ रही है, please mute yourself. Now, let's continue. Apple bought Next. I returned to Apple, and the technology was developed at Next is at the heart of the Apple's current renaissance. And Lauren and I have a wonderful family together. Now, see, finally,
स्टीव जॉब्स ने 5 इयर्स के अंदर ही पिक्सर करके वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो कंपनी उन्होंने ओपन किया, एंड जिस कंपनी से उनको निकाला गया था उसी कंपनी को उन्होंने नेक्स्ट वे में बाय कर लिया, एंड दैट वाज एप्पल. ही बॉट द कंपनी एप्पल, एंड जैसे ही वो एप्पल कंपनी में वापस, माय वॉइस इज क्लियर नाउ? मेरी आवाज क्लियर नहीं है? ट्रबल आ रहा है मिस. क्लियर है. अच्छा एक मिनट. नाउ लेट्स स्टार्ट. मैं फिर से स्टार्ट मिस करती हूँ. क्लियर है. नेक्स्ट. अच्छा नाउ वापस से कंटिन्यू करती हूँ. नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर स्टीव जॉब्स ने पिक्सर कंपनी को ओन किया, एंड फाइनली पिक्सर कंपनी के बाद उन्होंने जो नेक्स्ट कंपनी बॉट की, ही परचेसेस, ही बॉट एप्पल, द कंपनी फ्रॉम विच ही गॉट फायर्ड. उन्होंने उसी कंपनी को वापस से खरीदा, एंड उस कंपनी को पूरा रिनाउंस किया. रिनाउंस मीन्स होता है पूरा चेंज करना, उसका रीबर्थ करना, उसको रिवाइव करना. क्योंकि एप्पल कंपनी किसने बनाया था? स्टीव जॉब्स ने. उस कंपनी को उस पर्सन को ही निकाल दिया गया जिस पर्सन ने एप्पल कंपनी को बनाया था. तो क्या उस कंपनी में कोई नया टेक्नोलॉजी आया होगा? ऑफ कोर्स नॉट. चल रहा था वही चल रहा होगा. तो ऐसा कोई भी चीज हिट नहीं होता है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते. चेंजेस मेंट टू बी टेकन, राइट? हर एक टाइम में चेंजेस आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द जनरेशन. इमेजिन अभी भी आप लोग को वो ही बटन वाला नोकिया वाला फोन यूज करना रहता, तो क्या ये वीडियो कॉलिंग हो पाती? क्या ये मीटिंग हो पाती? ऑफ कोर्स नॉट. ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं हो पाते ना. हर एक चीज में चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं. तो यहाँ पे भी सेम, जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को उन्होंने सबसे पहला काम किया, उस कंपनी को पूरा रिनाउंस किया. he had given a rebirth to that company. rebirth कैसे दिया? उसको वापस से तोड़कर बनाया कंपनी को. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. रीबर्थ करना मतलब उसकी पूरी टेक्नोलॉजीज में चेंज कर दिया. जैसी टेक्नोलॉजी का डिमांड था उस वैसे टेक्नोलॉजीज को वापस से उधर इन्वेंट किया गया. उन्होंने लॉरेन करके एक पर्सन के, एक फीमेल के साथ शादी की, अपनी फैमिली उन्होंने क्रिएट की. नाउ second last paragraph. Sometime life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. The only way to great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. Now once again, hit you in the head with a brick. This is also a phrasal verb. ऊपर लिख लो, phrasal verb. Now sometimes life hit you in the head with a brick head. एक अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आना. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. पर आएगा जब आप लोग अपने आप को म्यूट करोगे. Now sometimes life hits you in the head with a brick. Life hit you in the head. Life hit you in the head with a brick means आपके लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग सिचुएशन अराइज होना जिसको आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट ऐसे सिचुएशंस में सिचुएशन आपको और फेथ रखना पड़ता है. यू डोंट हैव टू लूज फेथ. फेथ मींस होता है ट्रस्ट और विश्वास नहीं कर सकते हो. द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू. मिस वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अब आ रही है? वॉइस क्लियर. मिस अजीब सा तो साउंड आ रहा है. एक सेकेंड ना.
अब वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? यस मिस। ये आवाज क्यों आ रही है? Now, one second, hold on. Hell, क्या हो रहा है? Now, अब आ रही है वॉइस? यस मिस, क्लियर है अभी। क्लियर है पता है? ये क्या बार बार हो रहा है? अब मेरी वॉइस क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट। वापस से स्टार्ट करते हैं। एडजस्ट करो, पता नहीं मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब आवाज आ रही है? माइनस क्लियर नहीं आ रही मिस। आवाज आ रही है, बहुत कुछ कर रहा है। हाँ, एक काम करो, अब सुनाई दे रहा है? हेलो? मिस नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत ही आ रहा है। मेरी आवाज थोड़ी भी सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सब बताओ, आवाज आ रही है आपकी? लिसन, एक काम करते, सेकंड स्टोरी तक बंद करते, तुम लोग बस होमवर्क ले लो, इसको ध्यान से सुन लो ना। आपका होमवर्क सेकंड स्टोरी कहाँ पे एंड हो रहा है? हम थर्ड स्टोरी कल कर लेंगे। सम टाइम लाइफ हीट यू इन द हेड, थोड़ा एडजस्ट करो। In the head with a brick means when unexpected situation arises. आपके किसी पर्सन की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराइज होता है, और यहाँ पे भी स्टीव जॉब्स के do one thing, mute everyone, please mute yourself. सिर्फ मेरी आवाज now. So don't lose faith. The only way to do great work is to love what you do. यहाँ पे स्टीव जॉब्स बोल रहे हैं, whenever an unexpected situation arises, you don't have to lose faith. You have to do the great work. आपको वही काम करना है जो आपको पसंद है। उसके अलावा अगर आप कोई काम करने जाओगे ना, तो फिर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इफ इमेजिन सचिन तेंदुलकर बैठ के इंजीनियरिंग की तैयारी करता रहता, तो कुछ नहीं कर पाते वो, राइट? क्योंकि उनको वो पसंद ही नहीं होगा। That's the same thing. You can be only successful that if you are doing the thing which you love to do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. यहाँ पे स्टीव जॉब्स कह रहे, if अगर आपको वो चीज, वो फील्ड अब तक आपको मिला नहीं है, then found it, उसको ढूंढो, उसको समझो कि आपको क्या पसंद है, but don't settle.
किसी भी छोटे में सेटल मत हो, ओके? आप समझ रहे हैं? नाउ don't settle. Sometimes life hit you in the head with a brick. Don't lose faith. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. In the whole paragraph, Steve Jobs just want to say that don't lose your faith. Just do what you want to do and don't settle. Means आप किसी छोटी चीज में settle मत करो जिस चीज में आप interested नहीं हो. Always do what you want to do. That's it for the day. Now take your homework. आपको अपना भी मैं अभी होमवर्क दूंगी, वो सब होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सबमिट करना रहेगा टिल 8 PM. आपको 8 PM तक का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद मुझे कोई नहीं सेंड करेगा होमवर्क, ठीक है? नाउ योर होमवर्क इज पहले 62 पेज नंबर पे तीनों क्वेश्चंस हैं, वो आपका होमवर्क है. देन 63 पेज नंबर पे 2 क्वेश्चन है. मैं तेरे को टिक कर रही हूँ, तुम भी टिक कर लो जो जो होमवर्क है. ये होमवर्क है, टिक किया? नाउ नेक्स्ट, ये 3 भी होमवर्क है, मार्क इट. देन नेक्स्ट पेज 65 पे आ जाओ. 5 पे incident in the life of Steve Jobs in chronological order. Read the third story again. Complete the flow chart. बस इतना आपका होमवर्क है, ओके? नाउ यू हैव टू सबमिट दिस होमवर्क. अब पेज नंबर पे आ जाओ और मैं आपको जो जो वर्ड्स के मीनिंग बोल रही हूँ नोट इट डाउन. पहले ग्रीन पैसेज में आ जाओ. यहाँ पे ग्रीन पैसेज पे पाइनियर वर्ड दिख रहा है, पाइनियर्स, उसका मीनिंग लिखो. उसका मीनिंग लिखो. one who goes before. One who goes before. Write it down. Please write it down. One who goes before. Now next. Next second paragraph पे आ जाओ. Curiosity. QUSITIVE. Inquisitive. Now intuition का spelling लिखो. A perspective insight. A perspective insight. A perceptive insight. A perceptive insight. PERCEPTIVE. Insight. 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 Now calligraphy का मीनिंग लिखो. The art of ART. Art. The art of writing letters. The art of writing letters. LETTER. Letters. Okay. Now सेरिफ एंड सेंस सेरिफ का मीनिंग होता है टाइप फेसेस. वो टाइपोग्राफी का मीनिंग दिख रहा है द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर्स. ये उसके टाइप हैं, टिपोग्राफी के टाइप से, बस इतना ही है उसका मीनिंग. नाउ नेक्स्ट पेज 63 पे आ जाओ. डेस्टिनी. डेस्टिनी का मीनिंग लिखो फेट. FATE. फेट. डन. दैट्स इट. इतना ही मीनिंग है, बाकी मीनिंग सारे दिए हुए हैं. नाउ सब समझा? 65 पेज नंबर एक और बार दिखाओ ना. 65 पेज नंबर एक और बार दिखाऊं? एक मिनट. हाँ, आपको ये होमवर्क है और ये होमवर्क है, सिर्फ 2 ही होमवर्क है 65 पेज नंबर पे. रीअरेंज द इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर.
read the third story again, complete the flow chart. Okay, समझा Yes, सबको? please. Yes, That's yes. it. मिस अपना व्हाट्सएप नंबर दो ना। हाँ दे रही हूँ. म्यूट नहीं है मेरा अभी। ओके, सो आपको अब तक कोई डाउट है? Yes. एक बार फटाफट करते हैं, एक बार फटाफट करते हैं. स्टीव जॉब्स का कितने स्टोरीज है? 3 स्टोरीज. पहला स्टोरी क्या है? कनेक्टिंग द डॉट. सेकेंड स्टोरी क्या है? लव एंड लॉस. ओके, फर्स्ट स्टोरी कनेक्टिंग द डॉट्स. कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब होता है एसोसिएट वन आइडिया विथ अनदर वन. ओके, टू फाइंड एंड क्रिएट अ न्यू पिक्चर. एक पुराने आइडिया को, तुम्हारे प्रीवियस आइडिया को, तुम्हारे आने वाले आइडिया, तुम्हारे न्यू आइडियाज के साथ एसोसिएट करना, ताकि कुछ बड़ा कर पाओ तुम लाइफ में. दैट्स द मीनिंग ऑफ कनेक्टिंग द डॉट. लव एंड लॉस में आपने क्या पढ़ा? स्टीव वोजनिएक कौन था? स्टीव जॉब्स का पार्टनर था. एट द एज ऑफ 20 ही started the company with his friend in a garage, and after 10 years the company becomes $2 billion company. समझा? That's it. Bye. Take care. हो गया. अब कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट चैट में. मैंने 62 पेज नंबर पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं. 1 मिनट वापस से देख लो. सिक्सटी टू पेज नंबर पे ये क्वेश्चन. 62 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन. तब वॉयलिन को जो बजाता है उसको कहते हैं उस्ताद विस्मय, a famous player, तबला का. बांसुरी देता तो मैं भी देती. हेलो शिवानी मिस, हो गया क्या? हाँ सर, हो गया मेरा. ओके ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 10:30 का लेक्चर है, हो जाना ज्वाइन 10 मिनट में.